Good morning students, how are you? Students, in last video we have started component of ecosystem and definition of population and ecological term, and in this video I am going to start abiotic component. First, temperature, water, light and soil. Now started with temperature. Temperature, it is the most ecological relevant environmental factor. It is observed that seasonal and average temperature on the land varies and temperature decrease progressively from equator to poles. जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ में ये पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों होते हैं हमारी अर्थ पर, और ये इक्वेटर पर टेम्परेचर की रेंज हाई होती है। जैसे ही हम पोल्स की तरफ डायरेक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर की रेंज कम होती चली जाती है। ठीक है, एंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर वेराइज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया टू मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस एट हाई एल्टीट्यूड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। देखो, पोल के पास तो पोलर एरियाज पर सब जीरो और माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन जो डेजर्ट वाले एरिया हैं, इक्वेटर वाले एरिया हैं हमारी अर्थ के, तो वहाँ पे मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर आपको मिलता है। ठीक है, द टेम्परेचर कैन अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम एंड through it is the basal metabolism and other physiological function of the organism tolerating the high range of temperature। अगर कोई organism high temperature को tolerate कर रहा है, जैसे कि desert वाले organism, तो हम उनको बोलते हैं यूरेथर्मल। if टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट, हाई टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, नैरो रेंज को टॉलरेट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। Now we discuss about the water. It is the next important factor as the life is unsustainable without water. बिना पानी के हमारी लाइफ नहीं चल सकती। And the amount of water is an environment determine the productivity and distribution of the plant. For aquatic habitat, the qualities of water become important like pH value, salinity and temperature of the water. The organism tolerate जो wide range of salinity, high amount salt वाटर के अंदर जब प्रेजेंट होता है, अगर उसको टॉलरेट कर रहे हैं तो यूरे हाइलिन उसको हम बोलेंगे उन ऑर्गेनिज्म का। इफ साल्ट की अमाउंट कम है, नैरो रेंज है, तो हम उसको स्टेनो हाइलिन बोलेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लाइट। लाइट इज द इम्पोर्टेंट because autotrophs make food with the help of light. Photosynthesis and oxygen is evolved during the process, and the small plant like herbs can perform photosynthesis under very low light condition as they overshadowed by the tall trees। ये कह रहा है कि जैसे जो डेजर्ट, जो फॉरेस्ट हैं, तो उनमें ट्री की कैनोपी इतनी हाई हो जाती है, अपर लेयर जो कैनोपी है, जैसे ये कैनोपी है, ये अपर, ये कैनोपी, ये इतनी हाई हो जाती है ट्रीज़ की, जो नीचे यहाँ पे जैसे स्मॉल हर्ब है, तो वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो उसको क्या करते हैं ये, तो वो कम लाइट इंटेंसिटी में भी अपनी ओवरऑल ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, एंड द प्लांट डिपेंड ऑन द सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट द फ्लावरिंग। And for many animals, light is important in that used to diurnal and seasonal variation in the light intensity and duration. Photoperiod as cure for timing their foraging, reproductive and migratory activities. Now we discuss about the soil. Nature and property of the soil is varies with the different place. The nature and properties of soil depend on the climate and weathering process. The soil composition, grain size, aggregation determine the pre-collation and water holding capacity of the soil. Pre-collations में होता है कि जो soil का composition है, grain size, किस टाइप की soil है वहाँ पे, उसको हम pre-collation बोलते हैं कि कितना वो water को absorb करती है, उसको pre-collation बोलते हैं। The vegetation in an area is determined by the soil पैरामीटर लाइक pH, मिनरल्स, कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होती है सोइल की स्टडी करना। ठीक है,
रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्सेस में आता है हमारा during the courses of millions years of existence, many species would have to evolve a relatively constant internal with the body environment that permit all biochemical reaction and physiological function to proceed maximum efficiency and thus hence the overall fitness of the species. ये कह रहा है कि जो हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होता है तो उस पर वो अपना सारा वर्कआउट करती है, तो उससे कॉन्स्टेंटी और इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का, तो हम उस टर्म को क्या दे देते हैं, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन फॉर्म में रहता है। क्लियर बच्चों? देखो, हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद एनवायरनमेंट, ये कह रहा है रेगुलेट्स में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर दोनों को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि ये ग्राफ में देखिए, ये इंटरनल फैक्टर और दिस साइड इज द एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर कितना ही चेंज हो जाए, ये कांस्टेंट रेट में है तो हम इसको बोल देंगे रेगुलेटर। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड बाय चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो एक कंफर्ट जोन में आ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को वो एडजस्ट कर रहा है। लेकिन तब कई बार स्लोप हमारा कुछ टाइम के लिए तो कांस्टेंट फॉर्म में चलता है, फिर ये जाके स्टेशनरी स्टेज पर आ जाता है, तो जिसको हम पार्शियली रेगुलेटर्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब जैसे रेगुलेट हैं तो इसमें कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होमोस्टेटिस को फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर्स चेंजेस से मेंटेन करते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स, मैमल्स, फिर लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज मेंटेन होम्योस्टेटिस बाय द थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये ऑस्मोरेगुलेट भी करते हैं, हम भी करते हैं, और थर्मो मीन्स जो हीट का रेगुलेशन, ऑस्मो मीन्स वाटर का रेगुलेशन, ये बॉडी में करते हैं। The success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature। कह रहे मैमल्स की जो सक्सेसफुल जो एबिलिटी है होम्योस्टेटिस की, वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर से, जिसको होम्योथर्मिक का नाम दिया जाता है, होम्योथर्मिक। ठीक है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, तो क्या होगा, वी स्वीट प्रोफ्यूजली, लगातार स्वेटिंग होती रहेगी और हमारा बॉडी का टेम्परेचर इवोपरेट फंक्शन से क्या होगा, कूलिंग शो करना लग जाएगा और हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? इन विंटर व्हेन टेम्परेचर इज लोअर वे श्रिंक, एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, राइज हो जाएगा। प्लांट डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, तो ये रेगुलेटर की बात हो गई। कंफर्ट में क्या आता है, मेजॉरिटी 99% ऑफ एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल environment, their body temperature is determined by the ambient temperature, जो डिफरेंट टेम्परेचर पर सेटअप करते हैं, तो उनको कन्फर्म बोलते हैं। ठीक है, कन्फर्म वालों में क्या हुआ कि एनिमल्स में इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता, एम्बिएंट में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद रेट ऑफ एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से एनिमल्स एंड प्लांट आर सिंपली कॉल्ड कन्फॉर्मर। Loss or gain of the heat is a function of a surface area. The small animal have larger surface area होता है और they lose body heat very fast in low temperature, so they expend energy to generate body heat through the metabolism by, तो वो अपने metabolic rate को बढ़ाते हैं जिससे उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। and very small animal are rarely found in पोलर रीजन्स। ठीक है, तो यही रीजन है कि स्मॉलर एनिमल आपको पोलर रीजन्स में नहीं मिलते, क्योंकि वो स्मॉलर साइज़ के होंगे तो क्या होगा, उनके अंदर हीट जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से लॉस ज़्यादा होता रहेगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, टेम्परेरी मूवमेंट होती है किसी ऑर्गेनिज्म की,
और वो क्या करता है, स्ट्रेसफुल हैबिटेट से एक हॉस्पिटलाइज मतलब एक कंफर्ट जोन में आकर सेटअप हो जाता है कुछ टाइम के लिए, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल बर्ड्स का है, जैसे कैलोडिया नेशनल पार्क जो है भरतपुर में है इन राजस्थान में, और सुल्तानपुर जो लेक है वो गुड़गांव में सेटअप है। वहाँ पे 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड आते हैं लाइक साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली, वो नॉर्थन एरिया से आते हैं और वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सेटअप करते हैं क्योंकि नॉर्थन एरिया में बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ती है। अब सस्पेंड some bacteria, fungi and lower plant under unfavorable conditions slow down the metabolic rate and form a thick walled spore to overcome stressful condition। ये कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया फंजाई ये हैं प्लांट्स के स्पोर्स हैं तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने स्पोर के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग लेयर को डेवलप कर लेते हैं एंड स्पोर जर्मिनेट अंडर, सिर्फ वो सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन पर ही ग्रो करते हैं, अदरवाइज वो प्रोटेक्टिंग फॉर्म में रह जाते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि विंटर स्लिप। एनिमल जब माइग्रेट नहीं कर पाता वो स्ट्रेस से बचने के लिए तो वो क्या करता है, हाइबरनेट हो जाता है कि विंटर में वो एक कंफर्ट जोन में स्लीपिंग कर लेता है। स्नेल और फिश का एग्जांपल होता है एस्टिवेशन में, जो कि समर से बचने के लिए एस्टिवेशन, जो समर स्लिप करते हैं ऑर्गेनिज्म उनको बोलते हैं एस्टिवेशन। एंड जू प्लैंकेटन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंटर द डायपोज, ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। कहते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन, जो प्लैंकेटन क्या करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते तो वो डायपोज हो जाते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कैसे कि वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपने ही किसी जोन में एडजस्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, अडेप्टेशन फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एडेप्टेशन के टॉपिक हम कल करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।